سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی 177 آیتیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم والا ہے۔ اے لوگو اپنے پالنے والے سے ڈرو جس نے تم سب کو صرف ایک شخص سے پیدا کیا اور وہ اس طرح کی پہلے ان کی باقی مٹی سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا اور صرف انہی دو میاں بیوی سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اور اس اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قطع رحم سے بھی ڈرو بے شک اللہ تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز مال حرام کو بھلی چیز مال حلال کے بدلے میں نہ لو اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ چکھ جاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ نکاح کر کے تم یتیم لڑکیوں کی رکھ رکھاو میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں میں اپنی مرضی کے موافق دو دو اور تین تین اور چار چار نکاح کرو۔ پھر اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو کہ متعدد بیویوں میں بھی انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو یا جو لوڑی تمہاری زر خرید ہو اسی پر قناعت کرو۔ یہ تدبیر بے انصافی نہ کرنے کی بہت قرینے قیاس ہے۔ اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی دے ڈالو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں خود چھوڑ دے تو شوق سے کھاؤ پیو اور اپنے بے مال جن پر اللہ نے تمہاری گزر قرار دی ہے ان بیوقوفوں نہ سمجھ یتیم کو نہ دے بیٹھو، ہاں اس میں سے انہیں کھلاؤ اور ان کو پہناؤ تو مزاح کا نہیں، اور ان سے شوق سے اچھی طرح بات کرو اور یتیموں کو کاروبار میں لگائے رہو یہاں تک کہ بیاہ کرنے کے قابل ہو، پھر اس وقت تم انہیں ایک مہینے کا خرچ ان کے ہاتھ سے کرا کے اگر ہوشیار پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور خبردار ایسا نہ کرنا کہ اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے فضول خرچی کر کے جھٹ پٹ ان کا مال چٹ کر جاؤ، اور جو ولی یا سرپرست دولت مند ہو تو وہ مال یتیم اپنے خرچ میں لانے سے بچتا رہے، اور ہاں جو محتاج ہو وہ البتہ واجبی دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پس جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو ان کا گواہ بنا لو، اور یہ ہو تو حساب لینے کو اللہ کافی ہی ہے۔ ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں کچھ حصہ خاص مردوں کا ہے اور اسی طرح ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں کچھ حصہ خاص عورتوں کا بھی ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ ہر شخص کا حصہ ہماری طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت وہ قرابت دار جن کا کوئی حصہ نہیں اور یتیم بچے اور محتاج لوگ آ جائیں تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دے دو، اور اسے اچھی طرح عنوان شائستہ سے بات کرو، اور ان لوگوں کو ڈرنا اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ خود اپنے بعد ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو ان پر کس قدر ترس آتا، بس ان کو غریب بچوں پر سختی کرنے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان سے سیدھی طرح بات کرنا چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں دو یا دو سے زیادہ تو ان کا مقرر حصہ
कुल तरके का 2/3 है, और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा है, और मयत के बाप माँ हर एक का। अगर मयत की कोई औलाद मौजूद ना हो तो तरके के माल में से मुअय्यन खास चीजों में छठा हिस्सा है, और अगर मयत के कोई औलाद ना हो और उसके सिर्फ माँ बाप ही वारिस हो तो माँ का मुअय्यन खास चीजों में 1/3 हिस्सा तय है और बाकी बाप का। लेकिन अगर मयत के हकीकी और सौतेले भाई भी मौजूद हो तो अगरचे उन्हें कुछ न मिले, उस वक्त माँ का हिस्सा छठा ही होगा। और वे भी मयत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तालीम और अदाए कर्ज के बाद तुम्हारे बाप हो या बेटे, तुम तो यह नहीं जानते हो कि उसमें कौन तुम्हारी नाफरमानी में ज्यादा करीब है, फिर तुम क्या दखल दे सकते हो। ऐसा तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मुअय्यन होता है, क्योंकि अल्लाह तो जरूर हर चीज को जानता और तदबीर वाला है। और जो कुछ तुम्हारी बीवियां छोड़कर मर जाए, बस अगर उनके कोई औलाद ना हो तो तुम्हारा आधा है, और अगर उनके कोई औलाद हो तो जो कुछ वे तरका छोड़े उसमें से बाज चीजों में चौथाई तुम्हारा है। और वे भी औरत ने जिसकी वसीयत की हो और अदाए कर्ज के बाद अगर तुम्हारे कोई औलाद ना हो तो तुम्हारे तरके में से तुम्हारी बीवियों का बाज चीजों में चौथाई है, और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो तुम्हारे तरके में से उनका खास चीजों में 8वां हिस्सा है। और वे भी तुमने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और अदाए कर्ज के बाद। और अगर कोई मर्द या औरत अपनी मदद जिलो ख्याली भाई या बहन को वारिस छोड़े तो उनमें से हर एक का खास चीजों में छठा हिस्सा है, और अगर उससे ज्यादा हो तो सबके सब एक खास तिहाई में शरीक रहेंगे। और ये सब मयत ने जिसके बारे में वसीयत की है उसकी तामील और अदाए कर्ज के बाद, मगर हम एक वसीयत वारिसों को खुदा मखवा नुकसान पहुंचाने वाली न हो, तब ये वसीयत अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह तो हर चीज का जानने वाला और बुर्दबार है। यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, और अल्लाह और रसूल की इताअत करे उसको अल्लाह आखिरत में ऐसे हर भरे बागों में पहुंचा देगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, और वे उनमें हमेशा चैन से रहेंगे। और यही तो बड़ी कामयाबी है। और जिस शख्स से अल्लाह व रसूल की नाफरमानी की और उसकी हदों से गुजर गया तो बस अल्लाह उसको जहन्नुम में दाखिल करेगा, और वे उसमें हमेशा अपना किया भुगतता रहेगा, और उसके लिए बड़ी रुसवाई का अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी करें तो उनकी बदकारी पर अपने लोगों में से 4 गवाही लो, और फिर अगर चारों गवाह उसकी तस्दीक करें तो उसकी सजा ये है कि उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत आ जाए या अल्लाह उनकी कोई दूसरी राह निकाले। और तुम लोगों में से जिनसे बदकारी सरजद हुई हो उनको मारो पीटो, फिर अगर वे दोनों अपनी हरकत से तौबा करें और इस्लाह कर लें तो उनको छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। मगर अल्लाह की बारगाह में तौबा तो सिर्फ उन्हीं लोगों की ठीक है जो नादानिस्ता अनजाने में बुरी हरकत कर बैठे और फिर जल्दी से तौबा कर ले तो अल्लाह भी ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता है। और अल्लाह तो बड़ा जानने वाला हकीम है। और तौबा उन लोगों के लिए मुफीद नहीं है जो उम्र भर तो बुरे काम करते रहे, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सर पर मौता खड़ी हुई तो कहने लगे अब मैंने तौबा की। और इसी तरह उन लोगों के लिए भी तौबा मुफीद नहीं है जो कुफ्र ही की हालत में मर गए। ऐसे ही लोगों के वास्ते हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमानदारों, तुमको ये जायज नहीं कि अपने मुरिस की औरतों से निकाह कर के
ख्वाह माँ ख्वाह जबरदस्ती वारिस बन जाओ, और जो कुछ तुमने उन्हें शौहर के तरीके से दिया है उसमें से कुछ आपस से कुछ वापस लेने की नियत से उन्हें दूसरे के साथ निकाह करने से न रोको। हाँ, जब वे खुलम खुला कोई बदकारी करे तो अलबत्ता रोकने में मजाए का हर्ज नहीं, और बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते रहो, और अगर तुम किसी वजह से उन्हें नापसंद करो तो भी सब्र करो, क्योंकि अजब नहीं कि किसी चीज को तुम नापसंद करते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए उसमें बहुत बेहतरी कर दे। और अगर तुम एक बीवी को तलाक देकर उसकी जगह दूसरी बीवी निकाह करके तब्दील करना चाहो, तो अगरचे तुम उनमें से एक को जिसे तलाक देना चाहते हो बहुत सामान दे चुके हो, तो तुम उनमें से कुछ वापस न लो। क्या तुम्हारी यही गैरत है कि ख्वाह माँ ख्वाह बोहतान बांध कर या सर यही जुर्म लगाकर वापस ले लो, और क्या तुम उसको वापस लोगे हालांकि तुम्हें से एक दूसरे के साथ खिलवत कर चुका है और बीवियां तुमसे निकाह के वक्त नकफा वगैरह का पक्का करार ले चुकी हैं, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादाओं से निकाह जिमा अगरचे जिना किया हो, तुम उनसे निकाह न करो, मगर जो हो चुका वे तो हो चुका। वे बदकारी और अल्लाह की नाखुशी की बात जरूर थी और बहुत बुरा तरीका था। मुसलमानों, हस्बे जेल औरतें तुम पर हराम की गई हैं, तुम्हारी माएं, दादी, नारी वगैरह सब, और तुम्हारी बेटियां, पोतियां, नवासियां वगैरह, और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और भतीजियां और भांजियां और तुम्हारी बेमाएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, और तुम्हारी रजाई दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं, और वे मादर जिलो लड़कियां जो तुम्हारी गोद में परवरिश पा चुकी हो, और उन औरतों के पेट से पैदा हुई हैं जिनसे तुम हम स्त्री कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने उन बीवियों से सिर्फ निकाह किया हो, हम बिस्तरी न की, तो अलबत्ता उन मादरजिलों लड़कियों से निकाह करने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं है, और तुम्हारे सुलमी लड़कों तो नवासों वगैरह की बीवियां, बहुएं और दो बहनों से एक साथ निकाह करना, मगर जो हो चुका वे माफ है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और शौहरदार औरतें, मगर वे औरतें जो जिहाद में कुफार से तुम्हारे कब्जे में आ जाए, हराम नहीं। ये अल्लाह का तहरीरी हुक्म है जो तुम पर फर्ज किया गया है, और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए जायज है, बशर्ते की बदकारी व जिना नहीं, बल्कि तुम इफ़्फ़त व पाकदामिनी की गरज से अपने माल व मेहर के बदले निकाह करना चाहो। हाँ, जिन औरतों से तुमने मुता किया हो, तो उन्हें जो मेहर मुअय्यन किया है दे दो, और मेहर के मुकर्रर होने के बाद अगर आपस में कमो पर राजी हो जाओ, तो उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ और मसलहतों का पहचाने वाला है। और तुम्हें से जो शख्स आजाद इफ़्फ़तदार औरतों से निकाह करने की माली हैसियत से कुदरत न रखता हो, तो वे तुम्हारी उन मोमिना लौंडियों से जो तुम्हारे कब्जे में है निकाह कर सकता है, और अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ है। ईमान की हैसियत से तो तुम्हें एक दूसरे का हमजिन्स है, बस बेतामुल उनके मालिकों की इजाजत से लौंडियों से निकाह करो, और उनका मेहर हुस्ने सलूक से दे दो, मगर उन्हीं
लौंडियों से निकाह करो जो इफ़्फ़त के साथ तुम्हारी पाबंद रहे, न तो खुले आम जिना करना चाहें और न चोरी छिपे से आशनाई। फिर जब तुम्हारी पाबंद हो चुकी उसके बाद कोई बदकारी करे तो जो सजा आजाद बीवियों को दी जाती है उसकी आधी सजा लौंडियों को दी जाएगी। और लौंडियों से निकाह कर भी सकता है तो वे शख्स जिसको जिना में मुब्तला हो जाने का खौफ हो और सब्र करे तो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह तो ये चाहता है कि अपने ये काम तुम लोगों से साफ साफ बयान कर दे, और जो अच्छे लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके तरीके पर चला दे और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह तो हर चीज से वाकिफ और हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, और जो लोग नफसियानी ख्वाहिश के पीछे पड़े हैं वे ये चाहते हैं कि तुम लोग राहे हक से बहुत दूर हट जाओ, और अल्लाह चाहता है कि तुमसे बार में तखफीफ कर दे, क्योंकि आदमी तो बहुत कमजोर पैदा किया गया है। ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खा जाया करो, लेकिन हाँ, तुम लोगों की बामी रजामंदी से तिजारत हो और उसमें एक दूसरे का माल हो तो मुजायका नहीं, और अपना गला आप घुट के अपनी जान न दो, क्योंकि अल्लाह तो जरूर तुम्हारे हाल पर मेहरबान है। और जो शख्स जुर्म जुल्म से नाहक ऐसा करेगा, खुदकुशी करेगा, तो याद रहे कि हम बहुत जल्द उसको जहन्नुम की आग में झोंक देंगे। यह अल्लाह के लिए आसान है। जिन कामों की तुम्हें मनाही की जाती है, अगर उनमें से तुम गुनाहे कबीरा से बचते रहे तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों से भी दरगुजर करेंगे और तुमको बहुत अच्छी इज्जत की जगह पहुंचा देंगे। और अल्लाह ने जो तुम्हें से एक दूसरे पर तरजीह दी है उसकी हवस न करो, क्योंकि फजीलत तो अमाल से है। मर्दों को अपने किए का हिस्सा है और औरतों को अपने किए का हिस्सा। और ये और बात है कि तुम अल्लाह से उसके फजल व करम की ख्वाहिश करो। अल्लाह तो हर चीज़ से वाकिफ है। और माँ बाप या और कराबतदार गरज तो शख्स जो तरका छोड़ जाए, हमने हर एक का वाली वारिस मुकर्रर कर दिया है। और जिन लोगों से तुमने मुस्तहकम पका बेहद किया है उनका मुकर्रर हिस्सा भी तुम दे दो। बेशक अल्लाह तो हर चीज पर गवाह है। मर्दों का औरतों पर काबू है, क्योंकि एक तो अल्लाह ने बाज आदमियों मर्द को बाज आदमियों औरत पर फजीलत दी है, और इसके अलावा चूंकि मर्दों ने औरतों पर अपना माल खर्च किया है, बस नेक बख्त बीवियां तो शौहरों की ताबेदारी करती हैं, और उनके पीठ पीछे जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत की वे भी हर चीज की हिफाजत करती है। और वे औरतें जिनके नाफरमान सरक्ष होने का तुम्हें अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ, और उस पर न माने तो तुम उनके साथ सोना छोड़ दो, और इससे भी न माने तो मारो, मगर इतना कि खून न निकले और कोई अज़्ज़ो न टूटे। बस अगर वे तुम्हारी मती हो जाए तो तुम भी उनके नुकसान की राह न ढूंढो। अल्लाह तो जरूर सबसे बढ़कर बुजुर्ग है। और ए काम वक्त, अगर तुम्हें मियाँ बीवी की पूरी ना इत्तेफाकी का तरफेन से अंदेशा हो तो एक सालिस पंच मर्द के कुनबे में से एक और सालिस औरत के कुनबे में मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सालिस दोनों में मेल करा देना चाहे तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान उसका अच्छा बंदोबस्त कर देगा। अल्लाह तो बेशक वाकिफ व खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ, और माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और रिश्तेदारों पड़ोसियों और
अजनबी पड़ोसियों और पहलू में बैठने वाले मुसाहिबों और पड़ोसियों और जर खरीद लौंडी और गुलाम के साथ एहसान करो, बेशक अल्लाह के चलने वालों और शेखी बाजों को दोस्त नहीं रखता। ये वे लोग हैं जो खुद तो बुखल करते ही हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और जो माल अल्लाह ने अपने फजल करम से उन्हें दिया है उसे छिपाते हैं, और हमने तो कुफराने नियमत करने वालों के वास्ते सख्त जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग महज लोगों को दिखाने के वास्ते अपने माल खर्च करते हैं और न खुदाही पर ईमान रखते हैं और न रोजे आखिरत पर, अल्लाह भी उनके साथ नहीं, क्योंकि उनका साथी तो शैतान है, और जिसका साथी शैतान हो तो क्या ही बुरा साथी है। अगर ये लोग अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से राहे अल्लाह में खर्च करते तो उन पर क्या आफत आ जाती, और अल्लाह तो उनसे खूब वाकिफ है। अल्लाह तो हरगिज जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि अगर जरा बराबर भी किसी की कोई नेकी हो तो उसको दूना करता है और अपनी तरफ से बड़ा सवाब अता फरमाता है। खैर, दुनिया में तो जो चाहे करें, भला उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर गिरोह के गवाह तलब करेंगे और मोहम्मद सशून्य तुमको उन सब पर गवाह की हैसियत में तलब करेंगे उस दिन जिन लोगों ने फजर इख्तियार किया और रसूल की नाफरमानी की, ये आरजू करेंगे कि काश वे पेवंदे खाक हो जाते और उनके ऊपर से जमीन बराबर कर दी जाती, और अफसोस ये लोग अल्लाह से कोई बात उस दिन छुपा भी न सकेंगे। ऐ ईमानदारों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ ताकि तुम जो कुछ मुंह से कहो समझो भी तो, और न जनाबत की हालत में यहाँ तक कि गुस्ल कर लो मगर राह गुजर में हो, और गुस्ल मुमकिन नहीं है तो अलबत्ता जरूरत नहीं, बल्कि अगर तुम मरीज हो और पानी नुकसान करे या सफर में हो, तुम्हें से किसी का पैखाना निकल आए या औरतों से सोहबत की हो और तुमको पानी न मैसर हो कि तहारत करो, तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो। और उसका तरीका ये है कि अपने मुंह और हाथों पर मिट्टी भरा हाथ फेरो, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला है और बख्शने वाला है। ऐ रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्हें किताबे अल्लाह का कुछ हिस्सा दिया गया था, मगर वे लोग हिदायत के बदले गुमराही खरीदने लगे। उनकी एन मुराद यह है कि तुम भी राहे रास्त से बहक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और दोस्ती के लिए बस अल्लाह काफी है और हिमायत के वास्ते भी अल्लाह ही काफी है। ऐ रसूल, यहूद से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बातों में उनके महल बमौके से फेर डाल देते हैं और अपनी जबानों को मरोड़ कर और दीन पर तानाजनी की राह से तुमसे समय अना व असैना हमने सुना और नाफरमानी की, और वसम गैरा मुस्मिन तुम मेरी सुनो, अल्लाह तुमको न सुनवाए। राअना, मेरा ख्याल करो मेरे चरवाहे कहा करते हैं, और अगर वे इसके बदले समय अना व अताना हमने सुना और माना, और इस्मा मेरी सुनो और राअना के एवज जुड़ना हम पर निगाह रख, कहते तो उनके हक में कहीं बेहतर होता और बिल्कुल सीधी बात थी, मगर उन पर तो उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह की फिटकार है। बस उनमें से चंद लोगों के सिवा और लोग ईमान ही न लाएंगे। अहले किताब जो किताब हमने नाजिल की है और उस किताब की भी तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, उस पर ईमान लाओ, मगर कब्ल इसके कि हम कुछ लोगों के चेहरे बिगाड़ कर उनके पुष्ट की तरफ फेर दें, या जिस तरह हमने असहाबे सबर हफ्ते वालों
पर फिटकार बरसाई वैसी ही फिटकार उन पर भी करें और अल्लाह का हुक्म किया कराया हुआ काम समझो। अल्लाह उस जुर्म को तो अलबत्ता नहीं माफ करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए और उसके सिवा जो गुनाह हो जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने किसी को अल्लाह का शरीक बनाया तो उसने बड़े गुनाह का तूफान बांधा। ऐ रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो आप बड़े मुकद्दस बनते हैं, मगर इससे क्या होता है, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है मुकद्दस बनाता है, और जुल्म तो किसी पर दागे के बराबर हो ही रहा नहीं। ऐ रसूल, जरा देखो तो ये लोग अल्लाह पर कैसे कैसे झूठ तूफान जोड़ते हैं, और खुलम खुला गुनाह के वास्ते तो यही काफी है। ऐ रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्हें किताबे अल्लाह का कुछ हिस्सा दिया गया था, और फिर शैतान और बुतों का कलमा पढ़ने लगे, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है उनकी निस्बत कहने लगे कि ये तो ईमान लाने वालों से ज्यादा राहे रास्त पर हैं। ऐ रसूल, यही वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह ने लानत की है तुम उनका मददगार हरगिज किसी को न पाओगे। क्या दुनिया की सल्तनत में कुछ उनका भी हिस्सा है कि इस वजह से लोगों को भूसी भर भी न देंगे? यह अल्लाह ने जो अपने फजल से तुम लोगों को कुरान अता फरमाया है इसके रश पर जले जाते हैं, तो उसका क्या इलाज है? हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और अक्ल की बातें अता फरमाई हैं, और उनको बहुत बड़ी सल्तनत भी दी। फिर कुछ लोग तो इस किताब पर ईमान लाए और कुछ लोगों ने उससे इनकार किया, और इसकी सजा के लिए जहन्नुम की दहकती हुई आग काफी है। याद रहे कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें जरूर अनकरीब जहन्नुम की आग में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल कर पैदा करे देंगे ताकि वे अच्छी तरह अजाब का मजा चखें। बेशक अल्लाह हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम किए हम उनको अनकरीब ही बेहिश्त के ऐसे ऐसे हरे भरे बागों में जा पहुंचाएंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और उनमें हमेशा रहेंगे। वहां उनकी साफ सुथरी बीवियां होंगी, और उन्हें घनी छाव में ले जाकर रखेंगे। ऐ ईमानदारों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि लोगों की अमानतें अमानत रखने वालों के हवाले कर दो, और जब लोगों के बाहमी झगड़ों का फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला करो। अल्लाह तुमको इसकी क्या ही अच्छी नसीहत करता है। इसमें तो शक नहीं कि अल्लाह सबकी सुनता है और सब कुछ देखता है। ऐ ईमानदारों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की, और जो तुम्हें से साहिबाने हुकूमत हो उनकी इताअत करो। और अगर तुम किसी बात में झगड़ा करो, बस अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो इस अम्र में अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है और अंजाम की राह से बहुत अच्छा है। ऐ रसूल, क्या तुमने उन लोगों की हालत पर नजर नहीं की जो ये ख्याली पुलाव पकाते हैं कि जो किताब तुझ पर नाजिल की गई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई सब पर ईमान लाए, और दिली तमन्ना ये है कि सरकशों को अपना हाकिम बनाए, हालांकि उनको हुक्म दिया गया कि उसकी बात न माने, और शैतान तो यह चाहता है कि उन्हें बहका के बहुत दूर ले जाए। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है उसकी तरफ और रसूल की तरफ रुजू करो, तो तुम मुनाफिकीन को देखते हो कि तुमसे किस तरह मुंह फेर लेते हैं कि जब उन
पर उनके करतूत की वजह से कोई मुसीबत पड़ती है तो क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमारा मतलब नेकी और मेल मिलाप के सिवा कुछ न था। ये वे लोग हैं कि कुछ अल्लाह ही उनके दिल की हालत खूब जानता है। बस तुम उनसे दरगुजर करो और उनको नसीहत करो और उनसे उनके दिल में असर करने वाली बात कहो। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इस वास्ते कि अल्लाह के हुक्म से लोग उसकी इताअत करें। और रसूल जब उन लोगों ने नाफरमानी करके अपनी जानों पर जुल्म किया था, अगर तुम्हारे पास चले आते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल तुम भी उनकी मगफिरत चाहते तो बेशक वे लोग अल्लाह को बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। बस ए रसूल तुम्हारे परवरदिगार की कसम ये लोग सच्चे मोमिन ना होंगे तावक्ते जब तक कि अपने बाहमी झगड़ों में तुमको अपना हाकिम न बनाए। फिर यही नहीं बल्कि जो कुछ तुम फैसला करो उससे किसी तरह दिल तंग भी नहीं हो बल्कि खुशी खुशी उसको मान ले। इस्लामी शरीयत में तो उनका ये हाल है। और अगर हम बनी इसराइल की तरह उन पर ये हुक्म जारी कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या शहर बदर हो जाओ तो उनमें से चंद आदमियों के सिवा ये लोग तो उसको न करते। और अगर ये लोग इस बात पर अमल करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है तो उनके हक में बहुत बेहतर होता और दीन में भी बहुत साबित कदमी से जमे रहते। और इस सूरत में हम भी अपनी तरफ से जरूर बड़ा अच्छा बदला देते और उनको राहे रास्तों की भी जरूर हिदायत करते। और जिस शख्स ने अल्लाह और रसूल की इताअत की तो ऐसे लोग उन मकबूल बंदों के साथ होंगे जिन्हें अल्लाह ने अपनी नेमतें दी हैं, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। और ये लोग क्या ही अच्छे रफीक हैं। ये अल्लाह का फजल व करम है और अल्लाह तो वाकिफ कारी में बस है। ईमान वालों जिहाद के वक्त अपनी हिफाजत के जराए अच्छी तरह देखभाल लो। फिर तुम्हें इख्तियार है ख्वाह दस्ता दस्ता निकलो या सबके सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। और तुम्हें से बाज ऐसे भी हैं जो जिहाद से जरूर पीछे रहेंगे। फिर अगर इत्तेफाकन तुम पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो कहने लगे अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया कि मैं उन मुसलमानों के साथ मौजूद न हुआ। और अगर तुम पर अल्लाह ने फजल किया और दुश्मन पर गालिब आए तो इस तरह अजनबी बन के कि गोया तुम्हें उसमें कभी मोहब्बत ही न थी। वो कहने लगा कि "ऐ काश उनके साथ होता तुम्हें भी बड़ी कामयाबी हासिल करता। बस जो लोग दुनिया की जिंदगी जान तक आखिरत के वास्ते दे डालने को मौजूद है उनको अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहिए। और जिसने अल्लाह की राह में जिहाद किया फिर शहीद हुआ तो गोया गालिब आया तो बहरहाल हम तो अनकरीब ही उसको बड़ा अज्र अता फरमाएंगे। और मुसलमानों तुमको क्या हो गया है कि अल्लाह की राह में उन कमजोर और बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों को कुफ्फार के पंजे से छुड़ाने के वास्ते जिहाद नहीं करते, जो हालत मजबूरी में अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि हमारे पालने वाले किसी तरह इस बस्ती मक्का से जिसके बाशिंदे बड़े जालिम हैं हमें निकाल और अपनी तरफ से किसी को हमारा सरपरस्त बना। और तू खुद ही किसी को अपनी तरफ से हमारा मददगार बना। बस देखो ईमान वाले तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और कुफ्फार शैतान की राह में लड़ते मरते हैं। बस मुसलमानों तुम शैतान के हवा खाहों मानने वालों से लड़ो और कुछ परवाह न करो क्योंकि शैतान का दाव तो बहुत ही बुरा है। ए रसूल क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिनको जिहाद की आरज़ू थी और उनको हुक्म दिया गया था कि अभी
अपने हाथ रोके रहो और पाबंदी से नमाज पढ़ो और ज़कात दिए जाओ, मगर जब जिहाद उन पर वाजिब किया गया तो उनमें से कुछ लोग बूढ़ेपन में लोगों से इस तरह डरने लगे जैसे कोई अल्लाह से डरे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, और घबरा कर कहने लगे, अल्लाह, या तूने हम पर जिहाद क्यों वाजिब कर दिया? हमको कुछ दिनों की और मोहलत क्यों न दी? ए रसूल, उनसे कह दो कि दुनिया की आसाइश बहुत थोड़ा सा है, और जो अल्लाह से डरता है उसकी आखिरत उससे कहीं बेहतर है, और वहाँ तो रेशा बाल बराबर भी तुम लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तुम चाहे जहाँ हो मौत तो तुमको ले डालेगी, अगरचे तुम कैसे ही मजबूत पक्के गुंबदों में जा छुपो, और उनको अगर कोई भलाई पहुँचती है तो कहने लगते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर उनको कोई तकलीफ पहुँचती है तो शरारत से कहने लगते हैं कि ए रसूल, ये तुम्हारी बदौलत है। ए रसूल, तुम कह दो कि सब अल्लाह की तरफ से है। बस उन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात ही नहीं समझते। हालांकि सच तो यूं है कि जब तुमको कोई तकलीफ पहुंचे तो समझो कि अल्लाह की तरफ से है, और जब तुमको कोई फायदा पहुंचे तो समझो कि खुद तुम्हारी बदौलत है। और ए रसूल, हमने तुमको लोगों के पास पैगंबर बनाकर भेजा है, और इसके लिए अल्लाह की गवाही काफी है। जिसने रसूल की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने रूगर्दानी की, मुंह मोड़ा, तो तुम कुछ ख्याल न करो, क्योंकि हमने तुमको पासबान मुकर्रर करके तो भेजा नहीं है। ये लोग तुम्हारे सामने तो कह देते हैं कि हम आपके फरमाबरदार हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से बाहर निकले तो उनमें से कुछ लोग जो कुछ तुमसे कह चुके थे उसके खिलाफ रातों को मशवरा करते हैं। हालांकि ये नहीं समझते, ये लोग रातों को जो कुछ भी मशवरा करते हैं उसे अल्लाह लिखता जाता है। बस तुम उन लोगों की कुछ परवाह न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह कारसाजी के लिए काफी है। तो क्या ये लोग कुरान में भी गौर नहीं करते और ये नहीं ख्याल करते कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से आया होता तो जरूर उसमें बड़ा इख्तिलाफ पाते, और जब उनके मुसलमानों के पास अमन या खौफ की खबर आई तो उसे फौरन मशहूर कर देते हैं। हालांकि अगर वे उसकी खबर को रसूल या और ईमानदारों में से जो साहबाने हुकूमत तक पहुंचाते तो बेशक जो लोग उनमें से उसकी तहकीक करने वाले हैं, पैगंबर या वली, उसको समझ लेते कि मशहूर करने की जरूरत है या नहीं। और मुसलमानों, अगर तुम पर अल्लाह का फजल व करम और उसकी मेहरबानी न होती तो चंद आदमियों के सिवा तुम सबके सब शैतान की पैरवी करने लगते। बस ए रसूल, तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, और तुम अपनी जात के सिवा किसी और के जिम्मेदार नहीं हो, और ईमानदारों को जिहाद की तरगीब दो, और अनकरीब अल्लाह काफिरों की है बद रोक देगा, और अल्लाह की है बद सबसे ज्यादा है, और उसकी सजा बहुत सख्त है। जो शख्स अच्छे काम की सिफारिश करे तो उसको भी उस काम के सवाब से कुछ हिस्सा मिलेगा, और जो बुरे काम की सिफारिश करे तो उसको भी उसी काम की सजा का कुछ हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह तो हर चीज पर निगहबान है। और जब कोई शख्स सलाम करे तो तुम भी उसके जवाब में उससे बेहतर तरीके से सलाम करो, या वही लफ्ज जवाब में कह दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब करने वाला है। अल्लाह तो वही परवरदिगार है जिसके सिवा कोई काबिले परस्तिश नहीं। वे है तुमको कयामत के दिन जिसमें जरा भी शक नहीं जरूर इकट्ठा करेगा, और अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन होगा? मुसलमानों, फिर तुमको क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो फरीक हो गए हो?
ایک موافق ایک مخالف۔ حالانکہ خود اللہ نے ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کی عقلوں کو الٹ پلٹ دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے تم اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ اللہ نے جس کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اس کے لیے تمہیں سے کوئی شخص راستہ نکال ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کافر ہو گئے تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ بس جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ اس سے بھی منہ موڑیں تو انہیں گرفتار کرو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار، مگر جو لوگ کسی ایسی قوم سے جا ملیں کہ تمہیں اور ان میں صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا تم سے جنگ کرنے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آئے ہوں تو انہیں آزار نہ پہنچاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑ پڑتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرے اور تم سے نہ لڑے اور تمہارے پاس صلح کا پیغام دے تو تمہارے لیے ان لوگوں پر آزار پہنچانے کی اللہ نے کوئی سبیل نہیں نکالی۔ عنقریب تم کچھ ایسے اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی جھگڑے کی طرف بلائے گئے تو اس میں اوندے منہ کے بل گر پڑے۔ بس اگر وہ تم سے نہ کنارہ کشی کریں اور نہ تمہیں صلح کا پیغام دیں اور نہ لڑائی سے اپنے ہاتھ روکیں، بس ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریحی غلبہ عطا فرمایا۔ اور کسی ایماندار کو یہ جائز نہیں کہ کسی مومن کو جان سے مار ڈالے، مگر دھوکے سے قتل کیا ہو تو دوسری بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو دھوکے سے بھی مار ڈالے تو اس پر ایک ایماندار غلام کا آزاد کرنا اور مقتول کے قرابت داروں کو خون بہا دینا لازم ہے، مگر جب یہ لوگ معاف کریں، پھر اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہوئے جو تمہارے دشمن کافر حربی ہیں اور خود قاتل مومن ہے تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا، اور اگر مقتول ان کافر لوگوں میں کا ہو جن سے تم سے عہد و پیمان ہو چکا ہے تو قاتل پر واری سے مقتول کو خون بہا دینا اور ایک بندہ مومن کا آزاد کرنا واجب ہے۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کو نہ پائے تو اس کا کفارہ اللہ کی طرف سے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ خوب واقف تھا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے مار ڈالے غلام کی آزادی وغیرہ ہے، اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ نے اپنا غضب ڈھایا ہے اور اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایماندارو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو سفر کرو تو کسی کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو بلکہ اچھی طرح جانچ کر لیا کرو، اور جو شخص اظہار اسلام کی غرض سے تمہیں سلام کرے تو تم بے سوچے سمجھے نہ کہہ دیا کرو کہ تو ایماندار نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم فقط دنیاوی آسائش کی تمنا رکھتے ہو، مگر اسی بہانے قتل کر کے لوٹ لو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی ہے تو اللہ کے یہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ مسلمانوں، پہلے تم خود بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ بے اکٹھے مسلمان ہو گئے۔ غرض خوب چھان بین کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے ہر کام سے خبردار ہے۔ معذور لوگوں کے سوا جہاد سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ
اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والے پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے۔ اگرچہ اللہ نے سب ایمانداروں سے خواہ جہاد کریں یا نہ کریں بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، مگر غازیوں کو کھانا نشینوں پر عظیم ثواب کے اعتبار سے اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، یعنی انہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے درجے اور بخشش اور رحمت عطا فرمائے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی قبض روح فرشتے نے اس وقت کی ہے کہ دارالحرب میں پڑے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور فرشتے قبض روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں تم کس حالت غفلت میں تھے، تو وہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ ہم تو روئے زمین میں بے بس تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی سی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی رہائی کی کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزری کرے، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین میں بفراغت چین سے رہنے سہنے کے بہت سے کشادہ مقام پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو اللہ پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہی۔ مسلمانوں، جب تم روئے زمین پر سفر کرو اور تم کو اس امر کا خوف ہو کہ کفار اثناء نماز میں تم سے فساد کریں گے، تو اس میں تمہارے واسطے کچھ مضائقہ نہیں کہ نماز میں کچھ کم کر دیا کرو، بے شک کفار تو تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں، اور اے رسول تم مسلمانوں میں موجود ہو اور لڑائی ہو رہی ہو کہ تم ان کو نماز پڑھانے لگو، تو دو گروہ کر کے ایک کو لڑائی کے واسطے چھوڑ دو، اور ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لیے رہے، پھر جب پہلی رکعت کے سجدے کر دوسری رکعت فرادہ پڑھ لی تو تمہارے پیچھے پشت پناہ بنے، اور دوسری جماعت جو لڑ رہی تھی اور جب تک نماز نہیں پڑھنے پائی ہے اور تمہاری دوسری رکعت میں تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور اپنی حفاظت کی چیزیں اور اپنے ہتھیار نماز میں ساتھ لیے رہے، کفار تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ کاش اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے ذرا بھی غفلت کرو تو ایک بارگی سب کے سب تم پر ٹوٹ پڑے، ہاں البتہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں کی اتفاقاً تم کو بارش کے سبب سے کچھ تکلیف پہنچے یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار نماز میں اتار کے رکھ دو اور اپنی حفاظت کرتے رہو، اور اللہ نے تو کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے غرض ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم دشمنوں سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز تو ایمانداروں پر وقت معین کر کے فرض کی گئی ہے، اور مسلمانوں دشمنوں کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اگر لڑائی میں تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی ویسی ہی اذیت ہوتی ہے، اور تم کو یہ بھی امید ہے کہ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کو نصیب نہیں، اور اللہ تو سب سے واقف اور حکمت والا ہے۔ اے رسول،
ہم نے تم پر برہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کی ہے، اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بنو، اور اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول، تم ان بدماشوں کی طرف ہو کر لوگوں سے نہ لڑو جو اپنے ہی لوگوں سے دگا بازی کرتے ہیں، بے شک اللہ ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو دگا باز گناہ گار ہو لوگوں سے تو اپنی شرارت چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے جب وہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں، اور اللہ تو ان کی سب کرتوتوں کو علم کے احاطے میں گھیرے ہوئے ہے۔ مسلمانوں، خبردار ہو جاؤ، بھلا دنیا کی ذرا سی زندگی میں تو تم ان کی طرف ہو کر لڑنے کھڑے ہو گئے، مگر یہ تو بتاؤ پھر قیامت کے دن ان کا طرفدار بن کر اللہ سے کون لڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا کسی طرح اپنے نفس پر ظلم کرے، اس کے بعد اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے کچھ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے واقف اور بڑی تدبیر والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے قصور کے سر ٹھوکے تو اس نے ایک بڑے افترا اور صریح گناہ کو اپنے اوپر لاد لیا۔ اور اے رسول، اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان بدماشوں میں سے ایک گروہ تم کو گمراہ کرنے کا ضرور قصد کرتا، حالانکہ وہ لوگ بس اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہی نے تو مہربانی کی تم پر اپنی کتاب اور حکمت نازل کی، اور جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دی، اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اے رسول، ان کے راز کی باتوں میں اکثر میں بھلائی کا تو نام تک نہیں، مگر ہاں جو شخص کسی کو صدقہ دینے یا اچھے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان میل ملاپ کرانے کا حکم دے تو البتہ ایک بات ہے، اور جو شخص محض اللہ کی خوشنودی کی خواہش میں ایسے کام کرے گا تو ہم عنقریب ہی اسے بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہونے کے بعد رسول سے سرکشی کرے اور مومنین کے طریقے کے سوا کسی اور راہ پر چلے تو جدھر وہ پھر گیا ہے ہم بھی ادھر ہی پھیر دیں گے، اور آخر اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا شریک بنایا تو وہ بس بھٹک کے بہت اونچا پڑا، مشرکین اللہ کو چھوڑ کر بس اور توحید کی پرستش کرتے ہیں، یعنی بتوں کی جو ان کے خیال میں عورتیں ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ سرکش شیطان کی پرستش کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ اللہ بندہ، میں تیرے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو اپنی طرف ضرور لوں گا اور پھر انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں بڑی بڑی امیدیں بھی ضرور دلائے گا، اور یقیناً انہیں سکھا دوں گا، پھر وہ بتوں کے واسطے جانوروں کے کام ضرور چیر پھاڑ کریں گے، اور البتہ ان سے کہہ دوں گا بس پھر وہ میری تعلیم کے موافق اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو ضرور بدل ڈالیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنایا تو اس نے کھلم کھلا سخت گھاٹا اٹھایا۔ شیطان ان سے اچھے اچھے وعدے بھی کرتا ہے اور بڑی بڑی
उम्मीदें भी दिलाता है, और शैतान उनसे जो कुछ वायदे भी करता है वे बस मेरा धोखा ही धोखा है। यही तो वे लोग हैं जिनका ठिकाना बस जहन्नुम है, और वहां से भागने की जगह भी न पाएंगे। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए, उन्हें हम अनकरीब ही बेहिश्त के उन हरे भरे बागों में जा पहुंचाएंगे, जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी होंगी, और ये लोग उसमें हमेशा आबादुल-आबाद तक रहेंगे। ये उनसे अल्लाह का पक्का वायदा है, और अल्लाह से ज्यादा अपनी बात में पक्का कौन होगा। न तुम लोगों की आरज़ू से कुछ काम चल सकता है, न अहले किताब की तमन्ना से कुछ हासिल हो सकता है, बल्कि जैसा काम वैसा दाम। जो बुरा काम करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा, और फिर अल्लाह के सिवा किसी को न तो अपना सरपरस्त पाएगा और न मददगार। और जो शख्स अच्छे अच्छे काम करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत और ईमानदार भी हो, तो ऐसे लोग बेहिश्त में बेखट के जा पहुंचेंगे, और उन पर दिल भर भी जुल्म न किया जाएगा। और उस शख्स से दीन में बेहतर कौन होगा जिसने अल्लाह के सामने अपना सरे तस्लीम झुका दिया, और नेकोकार भी है और इब्राहिम के तरीके पर चलता है जो बातिल से कतरा कर चलते थे। और अल्लाह ने इब्राहिम को तो अपना खालिस दोस्त बना लिया, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ अल्लाह ही का है, और अल्लाह ही सब चीज को अपनी कुदरत से घेरे हुए है। ए रसूल, ये लोग तुमसे यतीम लड़कियों से निकाह के बारे में फतवा तलब करते हैं। तुम उनसे कह दो कि अल्लाह तुम्हें उनसे निकाह करने की इजाजत देता है, और जो हुक्म मनाही का कुरान में तुम्हें पहले सुनाया जा चुका है, वे हकीकतन उन तीन लड़कियों के वास्ते था जिन्हें तुम उनका मुअय्यन तय किया हुआ हक नहीं देते, और चाहते हो कि ये यूं ही उनसे निकाह कर लो। और उन कमजोर नाथवा कमजोर बच्चों के बारे में हुक्म फरमाता है, और वो ये है कि तुम यतीमों के हुकूक के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और यकीन रखो कि जो कुछ तुम नेकी करोगे तो अल्लाह जरूर वाकिफ का है। और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज्यादती व बेतवजही से तलाक का खौफ रखती हो, तो मियाँ बीवी के बाहम किसी तरह मिलाप कर लेने में दोनों में से किसी पर कुछ गुनाह नहीं है, और सुलह तो बहरहाल बेहतर है। और बुखल से तो करीब करीब हर तबीयत के हम पहलू हैं, और अगर तुम नेकी करो और परहेजदारी करो तो अल्लाह तुम्हारे हर काम से खबरदार है, वही तुमको अजर देगा। और अगर तुम बहुत तेरा चाहो, लेकिन तुम्हें इतनी सख्त तो हरगिज नहीं है कि अपनी कई बीवियों में पूरा पूरा इंसाफ कर सको, मगर ऐसा भी तो न करो कि एक ही की तरफ हमातन माइल झुक हो जाओ कि दूसरी को अधड़ में लटकी हुई छोड़ दो। और अगर बाहम मेल कर लो और ज्यादती से बच्चे रहो तो अल्लाह यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बाजरिए तलाक जुदा हो जाएं, तो अल्लाह अपने वसी खजाने से फरागुल बाली अता फरमा कर दोनों को एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। और अल्लाह तो बड़ी गुंजाइश और तदबीर वाला है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ अल्लाह ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें अल्लाह अता की गई है, उनको और तुमको भी उसकी हमने वसीयत की थी कि अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहो। और अगर कहीं तुमने कुफ्र इख्तियार किया तो याद रहे कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ अल्लाह ही का है, जो चाहे कर सकता है।
اور اللہ تو سب سے بے پرواہ اور اما صفت موصوف ہر حمد والا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، گرج سب کچھ خاص اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تو کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تم کو دنیا کے پردے سے بالکل اٹھا لے اور تمہارے بدلے دوسروں کو لا بس آئے، اور اللہ تو اس پر قادر و توانا ہے۔ اور جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا اجر موجود ہے، اور اللہ تو ہر شخص کی سنتا اور سب کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری یا تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے لیے خلاف ہی کہ وہ نہ ہو، خواہ مالدار ہو یا محتاج، کیونکہ اللہ تو تمہاری بنسبت ان پر زیادہ مہربان ہے۔ تو تم حق سے کترانے میں خواہش نفسیانی کی پیروی نہ کرو، اور اگر گھما پھرا کے گواہی دو گے یا بالکل انکار کرو گے تو یاد رہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خود اس سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول محمد ﷺ اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، ایمان لاؤ، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ہوا تو وہ راہ راست سے بھٹک کے دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کافر ہو گئے اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کی مغفرت کرے گا اور نہ انہیں راہ راست کی ہدایت ہی کرے گا۔ اے رسول، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ضرور دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت و آبرو کی تلاش کرتے ہیں؟ عزت ساری بس اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ مسلمانوں، حالانکہ اللہ تم پر اپنی کتاب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جاتا ہے اور اس سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اس نے تو شک ہی نہیں کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو ایک نہ ایک دن جہنم میں جمع ہی کرے گا۔ وہ منافقین جو تمہارے منتظر ہے کہ دیکھے فتح ہوتی ہے یا شکست، تو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ہوئی تو کہنے لگے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر فتح کا حصہ کافروں کو ملا تو کافروں کے طرفدار بن کر کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، مگر قصداً تم کو چھوڑ دیا اور تم کو مومنین کے ہاتھوں سے ہم نے بچایا نہیں تھا۔ منافقوں، قیامت کے دن تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کو مومنین پر اونچا رہنے کی ہرگز کوئی راہ نہیں قرار دی ہے۔ بے شک منافقین اپنے خیال میں اللہ کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ اللہ خود انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور یہ لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دل سے الکسائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور دل سے تو اللہ کو کچھ ہی سا یاد کرتے ہیں۔ اس کفر و ایمان کے بیچ ادھر میں پڑے جو لائے رہے ہیں، نہ ان مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف، اور اے رسول جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کی ہدایت کی تم ہرگز سبیل نہیں کر سکتے۔ اے ایمان والو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا
سرپرست نہ بناؤ، کیا یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کا سر یہی الزام اپنے سر قائم کر لو؟ اس میں تو شک ہی نہیں کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ اور اے رسول، تم وہاں کسی کو ان کا حمایتی بھی نہ پاؤ گے، مگر ہاں جن لوگوں نے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ سے لگے لپٹتے رہے اور اپنے دین کو محض اللہ کے واسطے نرا کھڑا کر لیا، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ بہشت میں ہوں گے، اور مومنین کو اللہ عنقریب ہی بڑا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اللہ کا شکروار کیا اور اس پر ایمان لائے تو اللہ تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا، بلکہ اللہ تو خود شکروار کرنے والوں کا قدرداں اور واقف کار ہے۔ اللہ کسی کے ہاں پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، اور اللہ تو سب کی سنتا ہے اور ہر ایک کو جانتا ہے۔ اگر کھلم کھلا نیکی کرتے ہو یا چھپا کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرتے ہو تو اللہ بھی بڑا درگزر کرنے والا اور قادر ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کفر و ایمان کے درمیان ایک دوسری راہ نکلے، یہی لوگ حقیقتاً کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں تفرقہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ بہت جلد ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، اہل کتاب یہودی جو تم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک کتاب آسمان سے اتروا دو، تم اس کا خیال نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ موسیٰ سے تو اس سے کہیں بڑھ کے درخواست کر چکے ہیں، چنانچہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، تب ان کی شرارت کی وجہ سے بجلی نے لی ڈالا۔ پھر باوجود کہ ان لوگوں کے پاس توحید کی واضح اور روشن دلیلیں آ چکی تھی، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے بچڑے کو الہ بنا لیا۔ پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے صریحی غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے ان کے سر پر کوہ طور کو لٹکا دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم ہفتے کے دن ہمارے حکم سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بہت مضبوط عہد و پیمان لے لیا۔ پھر ان کے اپنے یہ حد توڑ ڈالنے اور احکام اللہ سے انکار کرنے اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے اور اترا کر یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو چند آدمیوں کے سوا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور ان کے کافر ہونے اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ تو ان لوگوں نے اسے قتل ہی کیا نہ سولی ہی دی ان کے لیے، ایک دوسرا شخص عیسیٰ سے مشابہ کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اس کی حالت کی طرف سے دھوکے میں آ پڑے ہیں، ان کو اس واقعے کی خبر ہی نہیں مگر فقط اٹکل کے پیچھے پڑے ہیں، اور عیسیٰ کو ان لوگوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تو بڑا زبردست تدبیر والا ہے۔ اور
जब ईसा मेहदी मौऊद के ज़हूर के वक्त आसमान से उतरेंगे तो अहले किताब में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उन पर उनके मरने के कब्ल ईमान लाए, और खुद ईसा कयामत के दिन उनके खिलाफ गवाही देंगे। गरज यहूदियों की उन सब शरारतों और गुनाह की वजह से हमने उन पर वे साफ सुथरी चीजें जो उनके लिए हलाल की गई थी हराम कर दी, और उनके अल्लाह की राह से बहुत से लोगों को रोकने की वजह से भी, और बावजूद मुमानियत सूद खा लेने और नाहक जबरदस्ती लोगों के माल खाने की वजह से उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके वास्ते हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन ऐ रसूल, उनमें से जो लोग इल्म दीन में बड़े मजबूत पाए पर फायज हैं वे और ईमान वाले तो जो किताब तुम पर नाजिल हुई है सब पर ईमान रखते हैं और से नमाज पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और रोज़े आखिरत का यकीन रखते हैं, ऐसे ही लोगों को हम अनकरीब बहुत बड़ा अज्र अता फरमाएंगे। ऐ रसूल, हमने तुम्हारे पास भी तो इसी तरह वही भेजी जिस तरह नूह और उसके बाद वाले पैगंबरों पर भेजी थी, और जिस तरह इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान के पास वही भेजी थी, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की जिनका हाल हमने तुमसे पहले ही बयान कर दिया, और बहुत से ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल तुमसे बयान नहीं किया, और अल्लाह ने मूसा से बहुत सी बातें भी की, और हमने नेक लोगों को बेहिश्त की खुशखबरी देने वाले और बुरे लोगों को अजाब से डराने वाले पैगंबर भेजे, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों की अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी न रह जाए, और अल्लाह तो बड़ा जबरदस्त हकीम है। ये कुफ्फार नहीं मानते न माने, मगर अल्लाह तो इस पर गवाही देता है जो कुछ तुम पर नाजिल किया है खूब समझ बूझ कर नाजिल किया है, बल्कि उसकी गवाही तो फरिश्ते तक देते हैं, हालांकि अल्लाह गवाही के लिए काफी है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका वे राहे रास्त से भटक के बहुत दूर जा पड़े। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और उस पर जुल्म भी करते रहे न तो अल्लाह उनको बख्शेगा ही, और नहीं उन्हें किसी तरीके की हिदायत करेगा, मगर हाँ जहन्नुम का रास्ता दिखा देगा जिसमें ये लोग हमेशा पड़े रहेंगे, और ये तो अल्लाह के वास्ते बहुत ही आसान बात है। ये लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रसूल मोहम्मद सशून्य दीने हक के साथ आ चुके हैं, ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर इनकार करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ जमीन और आसमानों में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह बड़ा वाकिफकार हकीम है। अहले किताब अपने दीन में हद इत्दाल से तजावुज न करो, और अल्लाह की शान में सच के सिवा कोई दूसरी बात न कहो। मरियम के बेटे ईसा मसीह न अल्लाह थे न अल्लाह के बेटे, बस अल्लाह के एक रसूल और उसके कलमे हुक्म थे जिसे अल्लाह ने मरियम के पास भेज दिया था कि हामला हो जा, और अल्लाह की तरफ से एक जान थे बस अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और तीन अल्लाह के कायल न बनो, तस्लीस से बाज रहो, और अपनी भलाई तौहीद का कसरत करो। अल्लाह तो बस यकता माबूद है, वे उस नुक्स से पाक व पाकीज़ा है, उसका कोई लड़का हो उसे लड़के की हाजत ही क्या है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब तो उसी का है, और अल्लाह तो कारसाजी में काफी है। न तो मसीह ही अल्लाह का बंदा होने से हरगिज इनकार कर सकते हैं, और न अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते और
یاد رہے جو شخص اس کے بندہ ہونے سے انکار کرے گا اور شیخی کرے گا تو عنقریب ہی اللہ ان سب کو اپنی طرف اٹھا لے گا اور ہر ایک کو اس کے کام کی جزا و سزا دے گا۔ بس جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کا انہیں ثواب پورا پورا بھر دے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے کچھ اور زیادہ ہی دے گا۔ اور لوگ اس کا بندہ ہونے سے انکار کرتے تھے اور شیخی کرتے تھے، انہیں تو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور لطف یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے سوا نہ اپنا سرپرست ہی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگوں، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دین حق کی دلیل آ چکی اور ہم تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور نازل کر چکے ہیں۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے لگے لپٹتے رہے تو اللہ بھی انہیں عنقریب ہی اپنی رحمت و فضل کے شاداب باغوں میں پہنچا دے گا اور انہیں اپنے حضور کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اے رسول، تم سے لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ کلالہ بھائی بہن کے بارے میں اللہ تو خود تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے کہ اس کے نہ کوئی لڑکا بالا ہو نہ ماں باپ اور اس کے صرف ایک بہن ہو تو اس کا ترکے سے آدھا ہوگا، اور اگر یہ بہن مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو نہ ماں باپ تو اس کا وارث بس یہی بھائی ہوگا، اور اگر دو بہنیں زیادہ ہو تو ان کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اگر کسی کے وارث بھائی بہن دونوں ملے جلے ہو تو مرد کو عورت کے حصے کا دگنا ملے گا۔ تم لوگوں کے بھٹکنے کے خیال سے اللہ اپنے احکام واضح کر کے بیان فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔